My dear students of class 10th, here I am Poonam Prasad with the subject Social Science and your sub-subject History. And today we are going to start our chapter number 1, The Rise of Nationalism in Europe. Students, we have already had our chapter, The Nationalism in India, chapter number 3, which is very, very important and it is compulsory. So in your board exams, we have to go through only for the two chapters this time. The one, that is the chapter number 1, The Rise of Nationalism in Europe, and the second one is chapter number 3, Nationalism in India. Fine, we have already completed Nationalism in India. So let's we talk on the first one, the chapter number 1, The Rise of Nationalism in Europe. Students, हम लोग जब भी अपनी क्लासेस या कोई भी लेक्चर या कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो वी हैव टू गो थ्रू विद द चैप्टर एट अ ग्लांस. इट मीन्स व्हाट यू पीपल हैव टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. Student, the chapter is, as I have already told you, that the chapter is quite important. So initially we have to go with the meaning of nationalism, and we have to go through with the very important painting here, mentioned painting here of Frederic Soreus, who was a French artist, French painter. उन्होंने एक पेंटिंग बनाई. तो we will discuss on that particular painting, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो उस पेंटिंग से स्टार्ट होता है. So we have to go through with that painting. Fine. Then it comes to French Revolution. In class 9th you have already learnt about the French Revolution and its you can say significance in the arena of revolutionary during the period of 17th or 18th century. We had idea of nation after we had already the idea of nation during the period of in our class 9th. So we already learned about the French Revolution, क्यों कैसे start हुआ, reasons behind the French Revolution. But in this particular chapter हमें रिवोल्यूशन की लेगेसी पे बात करनी पड़ेगी, रिवोल्यूशन के एरियाज़ के बारे में बात करनी पड़ेगी कि रिवोल्यूशन से क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्यों ये ज़रूरी था, उसने अदर नेशंस को क्या लेसन दिए और क्यों ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक बना हमारे चैप्टर का. द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट सम वर्ड्स लाइक लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म. हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे. देन वी केम अक्रॉस विद सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, social, political and economical scenario, the aspects behind of making of you can say nation, or the rise of nationalism in Europe. Fine. Then we came across with the age of revolution 1830 to 1848. Again, this is quite important. Some revolutionary action done by the French people, some revolutionary actions done by the Frankfurt Assembly. हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. We had also we will go through with the various revolutionaries like Giuseppe Mazzini. Then हम लोग बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली. बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा. द स्टेप्स टूवर्ड्स ऑफ मेकिंग ऑफ जर्मनी, द स्टेप्स टूवर्ड्स ऑफ मेकिंग ऑफ इटली. हम इसमें किस तरीके से यूनिफाइड हुआ इटली और उसमें कौन कौन से लोगों का किस तरीके से योगदान था, कौन से नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उनका योगदान हम लोग पढ़ेंगे. इसके अलावा बेटा हम लोग एक्ट ऑफ यूनियन ब्रिटेन के बारे में भी पढ़ेंगे. मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है. एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे. और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ये इटसेल्फ ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो विजुअलाइजिंग द नेशन, इट मीन्स जैसे आप लोगों ने देखा होगा चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने देखा भारत माता या इंडिया को विजुअलाइज किया गया
from the side of our painters, from the side of our poets and all. उसी तरीके से यूरोप में भी मैरनी एंड जर्मेनिया, ये दो जो एलिगरीज थी, मैरनी एसोसिएटेड विद फ्रांस एंड जर्मेनिया एसोसिएटेड विद जर्मनी, इनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अबाउट द नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, इसमें हम लोग कहीं ना कहीं एक जो एंडिंग है चैप्टर की कंक्लूजन्स के साथ, बाल्कन्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज द ईस्टर्न क्वेश्चंस, बाल्कन रीजन्स के बारे में भी पढ़ेंगे. बेटा बीच में कुछ जैसे द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टेंटिनोपल, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. यानी कि ओवरऑल चिल्ड्रन द चैप्टर इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपके साथ साथ मुझे भी. लेट्स वी talk on the first one, and that is your nationalism. Let's we start with the meaning of nationalism. Students, as we have already gone through with that, what do you mean by nationalism? Nationalism, it means that we have to explain the idea of nationalism or why we called it as. हमें nationalism शब्द की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बेटा आपके घर में, हमारे घर में कहते हैं ना, आपस में हम जितना भी भिड़ जाएं अपने सदस्यों से, फैमिली मेम्बर से, लेकिन अगर कोई हम पे क्वेश्चनिंग करता है, हमारी फैमिली पे क्वेश्चनिंग करता है, हमारे घर पे क्वेश्चनिंग करता है, या कमेंट या अलग तरीके से चोट पहुंचाने की, भावनाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, है ना. हम नहीं चाहते कि कोई हमारे घर पे, कहते हैं ना कि कोई हमारे घर पे क्वेश्चन ना कर सके. इसके लिए क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने घर से जुड़े, कहीं ना कहीं हम अपनी फैमिली मेम्बर से जुड़े. अगर हम बात करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन, दैट हु आर यू, हम क्या बोलते हैं? दैट वी आर इंडियन, है ना, वी बिलोंग टू इंडिया. इसका मतलब क्या? ये एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस है टुवर्ड्स आवर नेशन. तो ये राइज ऑफ नेशनलिज्म जो आया वो कहीं 1 day 2 day का नहीं था स्टेप. ये इसको आने के लिए नंबर ऑफ रीजंस थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो थ्रू विद द मीनिंग दैट व्हाट एग्जैक्टली नेशनलिज्म. इट इज़ द आइडिया ऑफ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी. काइंडली कोरिलेट इट विद द इंडियन पर्सपेक्टिव बेटा. इट इज़ कोरिलेट विद द कॉमन आइडेंटिटी. Common identity means here what? Common identity का मतलब it relates with that everyone is equal, common. Sense of belongingness to a particular geographical area. Yes, if I am saying that I am India, India का मैप दिखाई दे रहा है वर्ल्ड में, हमारा एक geographical area डिवाइडेड है, हमें रीजन्स में हम लोग डिवाइडेड हैं, है ना. और लेकिन यही रीजन्स क्या है? वो एकजुट है, सारे एक हैं. अगर हम इंडिया, बेशक इस वक्त अगर हम कहें दैट बिलोंग्स टू यूपी, ओके फाइन, हम यूपी रीजन में, लेकिन यूपी है कहाँ? इंडिया में. ज्योग्राफिकली लोकेशन हमारा क्या है? इंडिया. मैप में चेकआउट किया, इंडिया इज देयर. सो वी आर हैविंग सम पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया. वी आर having a sense to attachment to a particular culture. Of course, having our distinctive culture, we had to kept in mind that culture comprises, यहाँ पे जो culture शब्द है, it is comprises or it is culminative with the enormous, it encompasses with variety of factors, like if you are talking about languages, if you are talking about food, cuisines, costumes, folklore, history, all literature, art, music, all it combines or culminative of culture. So अगर हम ये कहें कि राष्ट्रवाद क्या है या बच्चों nationalism क्या है, of course feeling of belongingness towards the nation, feeling of oneness towards the nation is what we called it as nationalism. Is that clear, children? Fine. So I hope you people understand what exactly nationalism meant. Rise of nationalism in Europe. Children, अगर हम बात करते हैं यूरोप की,
हम लोगों ने तो देखा इंडिया में नेशनलिज्म, राष्ट्रीय भावना क्यों आई? राष्ट्रीयता की भावना इसलिए आई क्योंकि हम लोग गुलाम थे अंग्रेज़ों के 200 सालों तक। टू बी फ्री फ्रॉम द हैंड्स ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स, वी wanted to liberate from the hands of foreign invaders. We wanted our own administration, own control over our country. That's why हम लोग एक हुए। हमारी स्ट्रेंथ ने हमें कहीं ना कहीं एक जो अपने देश के प्रति जो सम्मान था, प्यार था, उसके तहत ही हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना आई और यही कारण था जिसने हम लोगों को आज़ादी दिलाई। क्या ये सिर्फ भारत या एशियन कॉन्टिनेंट्स के ही लोगों में थी? नहीं बेटा, यूरोप में भी थी। क्योंकि जो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम बेटा, जो यूरोप था एक्चुअली इट वाज रूल्ड बाय द मोनार्कीज। वो मोनार्कीज या तो वो बाहरी थे यानी फॉरेन रूलर्स, वो रूल्ड द कंट्री, और द रूलर्स ऑफ अ कंट्री और हेरिडिटरी रूलर्स, दे रूल्ड ओवर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंट्री। बेसिकली जो आज यूरोप दिखाई दे रहा वो पहले नहीं था। इट वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल डिस्टिंक्ट, यू कैन से स्टेट्स, several states, varied states, and every state had their own ruler, their own culture, their own political, economical aspects. हर कोई अलग अलग था। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारे जितने भी राजपूताना डायनेस्टीज़ एंड अलग थी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टीज़ अलग थी, है ना। हम जब एंशिएंट पीरियड की बात करते तो जब अगर हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो वहाँ पे सारे जो रूलर्स थे वो डिवाइडेड थे उसी तरीके से, और सबके अपने अपने कल्चर थे, अलग अपने अपने कस्टम्स थे, अपने अपने फ्लैग्स थे, अपने अपने रीजन्स थे, है ना। उसी तरीके से यूरोप में भी ऐसा ही था, सबके अपने फ्लैग्स थे जो कहीं ना कहीं उस रीजन और उस एरिया के फीचर्स को दर्शाते थे। Thus, to unified or to make a different regions into the one nation give rise to nationalism in Europe. Ultimately, people thought about that. Why not we have to unify that Europe? Why we are not unified that the regions? क्यों हम इसको पैचवर्क की तरह रखें? पैचवर्क का मतलब समझे ना, अलग 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 वेरिड regions क्यों? Why we are not making, or why we are not making it into a single unified nation? तभी जन्म हुआ नेशन स्टेट का। Thus, the feeling of nationalism, it changes in the political and social, cultural, economical scenario of Europe that time. इस राष्ट्रीयता की भावना से changes आए जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। It leads towards the development of concept of nation states and that the citizens were having common identity and history. अगर हम कहते हैं कि फ्रांस इज हैविंग इट्स लैंग्वेज नेम्ड एज, हम कहते हैं ना फ्रेंच एज अ लैंग्वेज, तो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ की, स्पेन की, वहाँ की एक कॉमन आइडेंटिटी शो कर रहा है। जो हमारे, अगर हम बात करते हैं स्पेन की, स्पेनिश इज़ द लैंग्वेज इंडिया की। इंडिया इज़ मल्टी कल्चर, मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री। तो यहाँ पे हमें पता है काफ़ी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, बट अगर हम बात करते हैं नहीं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, है ना, संस्कृत इज़ देयर, तो सब लोग, सब सारी बातें हम लोग, सब लोग एक दूसरे, हमारे जितने जितने रीजन्स हैं वो सारे रीजन्स जो भाषीय है, चाहे वो प्रांतीय भाषा हो या जो हमारी मूल रूप से जो हम लोग भाषा बोलते हैं, वो अल्टीमेटली क्या है, दीज आर द पार्ट ऑफ, वो शो करता है दैट इंडिया इज़ अ कंट्री। लेकिन यही अल्टीमेटली क्या है, जब यूनिफाइड है, हम डिफरेंट स्टेट्स में ज़रूर डिवाइडेड है, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया इज़ कॉल्ड एज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स बेटा। सबकी अपनी, अगर हम कहें राष्ट्रीय गान एक है, राष्ट्रीय गीत एक है ना। जितने भी कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ आप चेक कर लो, चाहे वो नेशनल फ्लावर हो,
चाहे वो नेशनल एनिमल हो, सब देयर इज अ वन. चाहे वो नॉर्थ के लिए हो, दैट इज द सेम. सदर्न के लिए हो सेम. ईस्टर्न के लिए हो, दैट इज ऑल्सो. इफ द लोटस इज कॉल्ड एज द नेशनल फ्लावर, ऑफ कोर्स वो आपके वेस्टर्न इंडिया के लिए भी लोटस इज नोन एज द नेशनल फ्लावर. सो सिटीजन शुड बी कॉमन, है ना बेटा. तो this is what about the rise of nationalism in Europe, the reasons behind of that. The Europe was divided among different states, small to big states, and every states are having their own ruler with their own a system of administration, their own currency, their own weight and measure, their own economical, political, social, cultural aspects. Student, this is quite an important painting, and this painting was painted by Frédéric Soriot, French painter. So kindly go through with this painting. आपको वो पेंटिंग क्लियर दिखेगी. थोड़ा सा जूम करने के बाद यू हैव टू गो थ्रू विद दैट. यू हैव सीन इन दिस पिक्चर अबाउट इनकी उन्होंने कई पेंटिंग्स बनाई है बेटा. फ्रेडरिक सोरियो फ्रेंच आर्टिस्ट, और उन पेंटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट पेंटिंग थी बिकॉज हियर ही मेंशन्ड हिज यूटोपियन विजन डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग. आप पूछेंगे मैडम व्हाट इज यूटोपियन. एक्चुअली बेटा यूटोपियन सोसाइटी और यूटोपियन व्हाट वी कॉल इट एज अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियलिस्टिक, दैट इज सो आइडियल, which is actually not existed in reality, which is not existing in reality. जो सही मायने में एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे आदर्श समाज की रूपरेखा फ्रेडरिक सोरियो ने अपने इस पेंटिंग में रखा. स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर पेंटिंग फीचर्स के बारे में इफ वी आर टॉकिंग, दिस इज द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज ऑफ फ्रेडरिक सोरियो's पेंटिंग. इट शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका. आप लोग देख रहे हैं कि इसमें मेन और विमेन ऑफ ऑल द एजेस एंड ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेस, they offering homage to Statue of Liberty when they pass by it. A female figure was shown here. Female figure, Statue of Liberty here, students. Fine. Female figure is here. It is termed to be the allegory, personified. So female figure is here, which is called as a Statue of Liberty, shown with a torch. थोड़ा सा जूम करके देखिएगा. You have seen with the torch of enlightenment in one hand, and in a one, the charter, it means the royal statements of the rights of man in the other. This is about the Declaration of Right, कि जो ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ये आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है. उसका उन्होंने एक हाथ में रखा और एक हाथ में उन्होंने टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट. एनलाइटमेंट हियर मीन्स नॉलेज, राइट. उन्होंने उसको रखा एक प्रकाश में. हियर ऑन द अर्थ बेटा, ऑन द अर्थ द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज, अगर आप इमेज के पास में देखें, समथिंग हैज शैटर्ड हियर. Some images lie the shattered remains of the symbol of absolutes institution. अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो you have seen some crowns over there. So crown किसके सर पे होता है, ताज किसका होता है बेटा, किंग या फिर क्वीन. तो कहीं ना कहीं स्टैचू ऑफ लिबर्टी इटसेल्फ
इट सिग्निफाइज अबाउट द फ्रीडम। इनके सामने जो एब्सोल्यूट, और उस वक्त एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन किसे कहते थे? मोनार्की को, है ना। सो अगर हम डिफाइन करें एब्सोल्यूट को, सो इट इज अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट or a system of rule that has no restraints. It means no obstacle from the side of anyone. It means the powers are in the hand of one. If I am giving you the example is monarchy. Monarchy में क्या होता है? The powers are centralized, militarized and repressive. दमनकारी नीति को अपनाता है कौन? हमारा राजतंत्र। कोई राजतंत्र के खिलाफ नहीं बोल सकता है। जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स बनाया जाएगा वो अल्टीमेटली कौन बनाएगा? राजा या फिर क्वीन। इट मीन्स द पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ वन बेटा। फाइन। सो दिस इज व्हाट अबाउट द एब्सोल्यूट्स इंस्टीट्यूशन। तो उनके घमंड, उनके गर्व को, जो कहते हैं ना, उनके गुरूर को, उनके अभिमान को कहीं ना कहीं गिरा हुआ, या एक उनके रिमेन्स, उनके जो वो टूट चुके हैं, उनके रिमेन्स को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने रखा गया है। यू हैव सीन इट स्टूडेंट्स इन दिस पेंटिंग। सोर्यूज, this painting is also called as utopian's vision. It means the people of the world, they are grouped in a distinct nation. They are identified through their flags and national costumes, children. अगर मैं आपसे कहूँ, आप लोगों ने सुना होगा जब हमारे ओलंपिक गेम होते हैं या एशियन फेडरेशन के गेम्स होते हैं, या कोई भी हमारे वर्ल्ड वाइड लेवल गेम्स होते हैं, तो यू हैव सीन, आपने देखा होगा किस तरीके से जब ओपनिंग होती है और क्लोजर के टाइम पे जितने भी देश होते हैं वो पहले जो एक मशाल लेके जाते हैं। आपने अपने स्कूल में देखा होगा स्पोर्ट्स में कि हम कैसे पहचानते हैं कि दैट ग्रुप बिलोंग्स टू रेड हाउस, दैट ग्रुप्स बिलोंग्स टू ग्रीन हाउस, दैट ग्रुप्स बिलोंग्स टू येलो और ब्लू हाउस। किससे पता चलता है बेटा? सबसे पहले उनकी ड्रेसेस, उनके कॉस्ट्यूम से, उनके फ्लैग से, है ना। उसी तरीके से जब ओलंपिक्स गेम होते तो हम कैसे पता लगाते हैं कि ये इंडियंस जा रहे हैं, इंडियन टीम जा रही है? जो विमेन होते हैं यूजुअली साड़ी पहनती हैं, और जो मेल फोक्स होते हैं वो यूजुअली ऐसी उनकी एक ड्रेस होती है, और उसमें जो कोट सॉर्ट ऑफ होता है, कोट्स एंड पैंट विद द जो टर्बन, पगड़ी उन्होंने बांधी होती। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि ये इंडियंस हैं, क्योंकि वो हमारा कॉस्ट्यूम है। तो उसी तरीके से वो पास जब हो रहे थे तो वहाँ पे द पीपल ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज, दे वर ग्रुप्ड इन अ डिस्टिंक्ट costumes and the flags of their own nations. Countries बेटा फ्रॉम द हेवन, अगर मैं बात करूं आप लोग देखेंगे इस पिक्चर में, फ्रॉम द हेवन्स, स्वर्ग से जो क्राइस्ट हैं, सेंट हैं, एंजल्स हैं, दे ऑल्सो फील जॉय, हैप्पीनेस, उनको बहुत खुशी मिल रही है, वो काफ़ी उत्साहित हैं, खुश हैं इस पेंटिंग में. दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज द फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. क्यों? क्योंकि ये जो ह्यूमन चेन है, ये ह्यूमन ट्रेन जो यू कैन सी, वो अल्टीमेटली ब्रदरहुड सिंबलाइज कर रहा है. यानी कहीं ना कहीं द वर्ल्ड आर यूनिफाइड, द स्टेट्स आर यूनिफाइड.
और इसी ने जन्म दिया द वर्ड व्हाट वी कॉल्ड इट एज रिपब्लिक और द वर्ड व्हाट वी कॉल्ड इट एज डेमोक्रेटिक. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये फ्रेडरिक सोरियू की पेंटिंग थी. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज यूटोपियन विजन ऑफ फ्रेडरिक सोरियूस, जिसमें उन्होंने एक ऐसे आइडियल सोसाइटी के बारे में बताया जिसमें एवरी वन इज इक्वल, फ्रीडम, लिबर्टी, सोवर्जिनिटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. सो दिस इज ऑल अबाउट द पेंटिंग. If we are talking about who at all were the countries who paid the homage to the Statue of Liberty, USA, Switzerland, France, Germany, Austria, the Kingdom of Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, and Russia. These were the countries with their flag and with their costumes. They were they paid the homage to the Statue of Liberty. Some terms to be defined, as I have already told you: utopian vision, that is the vision of a society which is ideal, so ideal that is unlikely to actually exist, children. Absolutes, the powers on one hand only. If you are talking about the kings or the queen rule, yes, it means the monarchy. The last one is called as the plebiscite. Plebiscite is type of direct voting. There the people of the region has to ask for, accept or reject a proposal. So this is all about today's class, today's lecture. Tomorrow I would like to go for the first important topic, and that is your French Revolution. Children, this is quite important chapter. आपके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं. डेफिनेशंस पे बहुत फोकस करिएगा क्योंकि डेफिनेशंस इसके पूछे गए हैं. ठीक है? By this, children, you have to watch the video carefully and go ahead with your revisions. Revise the topic properly. Till then, thank you.